Digital Online classes. This is your first period of English language. So take out your English language book, Growing with Grammar, and open up page number 39, chapter 13. And today we will discuss the topic is, am, are plus ing. Today I am going to tell you about where or in which sentence we will use is, am, are and where we have to put ing. Do you know what pronouns? Which words used in the place of noun? These are called pronoun, as like he, she, it, they, these, those, them. These all words are pronoun. When we talk about any male means any boy or any man, we use pronoun he. When we talk about any girl, any lady, any woman, then we use pronoun she. Then we talk about any animal and anything, then we use pronoun it. Then there are more than one candidates or things, so we use word they. So these all are pronouns. Okay. Now just tell me, what are verbs? Action words are called verbs. You know that very well. Look, talk, eat, walk, run. These all are action words, and all action words are called verb. I'm writing here. Okay. These are pronouns. Verb. Run, eat, sit, drink. Cook. These all are verbs, all action word, which actions we do in our regular life. These action words are called verb. And is, am, are helping verbs who supports noun and verbs both. To support noun and verb both, we use helping verb, and helping verb are is, am, are. H means helping, V means verb, was, were, will, these all are helping verbs. So this is a table of pronouns, verb and helping verb. Now you can see in your topic is, am, are. That means these are helping verbs and the use of ing. ing will use at their place when the action is going on in a continuous way. Means the movement and the action is continuously in going manner. Okay. So now we will go and put is, am, are with ing. ing will always add with verbs. ing will always add with verb like running, eating, cooking, drinking, sitting. Okay. Now verb plus ing. I hope this is clear to you all. ing always put with verb. That means verb plus ing. So today we will talk about helping verb
present time. Present time means that thing which is going to happen or which are happen in today. Okay, for today we use is an are. And ing shows the movement which is going on. Okay, is will use with singulars. Singular means anyone name, anyone animal's name, anyone thing's name. Okay, and anyone non-living thing's name. Alright, for singulars. Will use with plurals when the name or the candidates or animals and things are more than one. Then we use are with that. Okay, with plurals. And am will always use with I. Only with I we always use am. Always use with singulars and he, she, it. Okay, singular any name. Any name, I am going to take a name Riya and Rahul. Okay, and he, she, it. I will use with any plurals like apples, bananas, children's. These all are plurals. If there is one apple, we say this is an apple. This is an apple. If there are more than one apples, then what we say? These are apples or those are apples. Okay. So are we use with plurals for many things or objects. who are
about more than 10 candidates, we use word they. They are talking, they are eating, they are crying. Okay, so they. With they we ever use are with they. Okay, because they are plural. Sita and Geeta. Sita is a girl and Geeta is also a girl. So there are two candidates, Sita and Geeta. One candidate is Sita and second candidate is Geeta. There are two candidates, and when there is more than one candidate, these are plural. It becomes plural. So with plural we always use are. With plural we always use are. Now he is used as the place of any male name. Male name means any boy's name or any man's name. Okay, so he is a pronoun, and with he we always use as a helping verb is. He is. So I hope that is clear to you all. Where we have to put is, where we have to put are, and where we have to put am. Am will always stands with I. Okay. Now ing. Ing always acts with verb. Verb are action words. So all ing always follow action word. I am cooking food. Cook is a verb and ing is added here, and the sentence which form here is present continuous tense. Okay, Ram is eating a banana. They are talking. Sita and Geeta are going to market. He is playing. Yes. So you know that which are action words? Eat is action word, talk is action word, go is an action word, and play is also an action word. So we always put ing with action words. Okay, to show the continuity. That means the action is going on in present time. Now I'm going to explain in Hindi for your comfort. Is MR हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. इज हमेशा किसी भी एक इंसान हो, मतलब व्यक्ति हो, वस्तु हो या जानवर हो, पर कोई एक होना चाहिए. तो हम क्या यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं. मतलब किसी भी सिंगुलर थिंग के साथ हम इसका यूज करते हैं. किसी भी प्लूरल थिंग के साथ, मतलब एक से ज्यादा जब ऑब्जेक्ट होते हैं तब हम आर का यूज करते हैं. दीज दोज इनके साथ में हम हमेशा आर का यूज करते हैं. ही शी इट के साथ में इज का यूज करते हैं, और आई के साथ में हम हमेशा एम का यूज करते हैं. एम का यूज और कहीं नहीं होता है, सिर्फ आई के साथ में होता है. और आई एन जी का सिंपल सा मतलब होता है रहा है. आई एन जी रहा, मतलब जो काम लगातार हो रहा है, अभी भी हो रहा है, उसमें हम आई एन जी का यूज करते हैं. और आई एन जी हमेशा वर्ब के साथ में लगता है. वर्ब क्रिया जो हम काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिया के
और इज एम आर का यूज आपको पता चल गया है। इज एम आर, इज और आर का मतलब है होता है और एम का मतलब हूँ होता है। मैं के साथ हमेशा हूँ यूज होता है, मैं यह कर रही हूँ, मैं यह कर रहा हूँ, तो आई के साथ एम का यूज होता है। ही शी इट और किसी भी सिंगुलर, सिंगुलर मतलब किसी एक नाम के साथ में हमेशा इज का यूज होता है। दीज दोज के साथ में आर का यूज होता है। और किसी भी प्लूरल, प्लूरल मतलब जैसे दो नाम हुए सीता और गीता, टू नेम्स है ना ये, और जब टू नेम्स हो गए तो मतलब वो प्लूरल हो गया ना। वन नेम होता है तो सिंगुलर होता है, टू नेम्स हो गए तो प्लूरल हो गया। तो जब प्लूरल हो गया तो हमने किसका यूज किया, आर का यूज किया, है ना। ऐसे ही जब सिंगुलर नेम होता है तो इस का यूज करते हैं, जैसे राम के साथ हमने इसका यूज किया क्योंकि राम सिंगुलर है ना, एक लड़का है राम, तो हमने इसका यूज किया। और जब ये दो हो गए, सीता और गीता दो लड़कियां हो गई, तब हमने आर का यूज किया। राम एंड श्याम एंड मोहन तीन हो गए, राम श्याम एंड मोहन तीन कैंडिडेट्स हो गए, तब भी हम आर का यूज करेंगे। समझ में आ गया। इसका यूज हमेशा सिंगुलर्स के साथ में होता है, आर का यूज प्लूरल्स के साथ में होता है और एम का यूज हमेशा आई के साथ में होता है। So students, I hope this is enough for today. You have to do exercise which is given with the chapter in your book. So do exercise of chapter. Topic is MR plus ING. We will meet again in our next class with another topic. But before that, complete your work. If you have any doubt, you can call to me or put a message in the group. Alright? Bye-bye. Thank you. Take care. Good morning students. This is your second period and this period is of Hindi language. So take out your Hindi language book and open up the page number 26. स्टूडेंट्स ये आपका हिंदी लैंग्वेज का टर्न और सेकेंड पीरियड है। आज मैं आपको पार्ट 6 वचन का रिवीजन कराऊंगी। आप पार्ट 6 पढ़ चुके हैं पहले, आपको बुकलेट में इसके एक्सरसाइजेज जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज हैं वो आपको मिल भी चुकी हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको जो भी बुकलेट में एक्सरसाइजेज मिल रही हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है, राइट डाउन करनी है। और जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है वो बुक में रहेगी, क्वेश्चन आंसर्स आप कॉपी में लिखेंगे और वो आपको बुकलेट में मिलता है। इसका मीनिंग ये है कि आपको जो भी बुकलेट में मिलता है वो आपको कॉपी में, नोटबुक में सेम वैसे ही करना है, लेकिन आप केवल क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इसलिए अभी आप सेकेंड टर्म से आपको चैप्टर 2 बुकलेट्स प्रोवाइड हो चुकी हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, अपनी नोटबुक में अपना वर्क कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पार्ट 6 वचन का रिवीजन कराती हूँ। पार्ट 6 जिसका नाम है वचन। वचन को इंग्लिश में हम कहते हैं नंबर। ठीक है, वचन क्या है? संज्ञा के जिस रूप से हमें उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। फिर से समझते हैं, संज्ञा के जिस रूप से हमें उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा में इस प्रकार है, इस प्रकार लिखते हैं, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो, होने का पता चले या ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे
वचन कहते हैं। ओके, संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, ठीक है, वो पता चले या बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का लड़के, ठीक है, लड़का अर्थात एक की संख्या में कितने का ज्ञान हो रहा है कि हमें इस शब्द से इसके रूप से पता चल रहा है कि लड़का क्या है, एक है, और लड़के क्या है, एक से अधिक है। ठीक है, तो ये संज्ञा का रूप, इससे हमें एक का ज्ञान हो रहा है, इससे एक से अधिक होने का ज्ञान हो रहा है। इसी प्रकार हम वचन को दो भागों में बांटते हैं। इसी संख्या के आधार पर वचन को हिंदी में दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन यानी संख्या, और एक तो आप जानते हैं अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से हमें उसकी संख्या में एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का। और वही बहु अर्थात बहुत वचन अर्थात संख्या, वही जिन संज्ञा शब्दों से हमें उसकी संख्या में बहुत होने का या एक से अधिक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लड़का क्या है, एक वचन है, और लड़के क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से दोहराते हैं। एक वचन क्या है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। वहीं संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक से अधिक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, गुड़िया एक वचन, गुड़िया बहुवचन। ठीक है, लड़की एक वचन, लड़के बहुवचन, और पत्ता एक वचन, पत्ते बहुवचन, किताब एक वचन, किताबें बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार से एक वचन और बहुवचन संज्ञा शब्दों से हमें पता चलता है कि वो संख्या में कितनी है। और यहाँ पर आपको कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना था और याद करना था। एक वचन में रुपया होता है, तो बहुवचन में हम उसे क्या कहते हैं, रुपए। बात बातें, ठीक है, आँख आँखें, शाखा शाखाएं, बहु बहुएं, तिथि तिथियां। इस प्रकार से कुछ एक वचन और बहुवचन संज्ञा शब्द दिए गए थे जिन्हें हम जिससे हम उनकी संख्या का बोध करते हैं। ठीक है बच्चों, वहीं कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे हम उसे देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है कि बड़ों तथा महापुरुषों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इससे आशय यह है कि जब हम एक वचन का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लिखते हैं लड़का आ रहा है। ठीक है, लड़का आ रहा है, तो यहाँ पर एक वचन था लड़का। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्रिया हमारी जो है शब्द है वो क्या है। अहीं वही अगर एक बहुवचन हो जाता और हो जाता लड़के, ठीक है, लड़के, तो लड़के आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, ये वाक्य क्या बनता है, लड़के आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ये शब्द न दिए गए होते और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया होता और आपसे पूछा जाता कि किस वाक्य में संज्ञा शब्द आपका एक वचन रहेगा और किस वाक्य में आपका संज्ञा शब्द बहुवचन रहेगा, तो हमें इस बात का ज्ञान कहाँ से होता है, क्रिया से हो जाता है कि आ रहा है, यहाँ पर है शब्द है और यहाँ पर रहे हैं, अर्थात इस है से और बहुवचन क्रिया से हमें पता चल गया कि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। कोई भी शब्द हो, जैसे यहाँ पर था लड़के और लड़का, तो यहाँ पर हमने क्रिया से ये पता लगाया कि हम यहाँ पर क्या आएगा, लड़का, क्योंकि आ रहा है, एक की बात हो रही, लड़का आ रहा है और यहाँ पर क्या फील करते, लड़के आ रहे हैं। ठीक है, अर्थात बहुवचन एक वचन के लिए हम रहा है, रहे हैं या इस तरह से क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, इस तरह से बहुवचन का। लेकिन जब हम बड़ों के लिए, महापुरुषों के लिए कोई बात कहते हैं, जैसे पिताजी आ रहे हैं या पिताजी आ रहा है, ठीक है, या माताजी या अध्यापक या गुरुजी कुछ भी है, तो आप वहाँ पर हम
भले ही वो एक वचन में है, ठीक है, लेकिन हम जैसे गुरुजी, ठीक है, तो गुरुजी आ रहा है, ये किसका असभ्यता का प्रतीक है, हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। गुरुजी भले ही एक वचन शब्द है, लेकिन हम सम्मान के लिए, अपने से बड़ों के लिए और महापुरुषों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ना कि था। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ना कि है, ठीक है। इस प्रकार से हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन शब्दों के बारे में जो एक वचन और बहुवचन में सदैव समान रहते हैं। एक वचन व बहुवचन में समान रहने वाले शब्द। ठीक है, जो दोनों रूपों में क्या रहते हैं, समान रहते हैं, ठीक है। जैसे फल, साधु, बालक, ठीक है, फल, साधु, बालक, फूल, खिलाड़ी, छात्र, फूल, खिलाड़ी, छात्र, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। नहीं, एक और शब्द है जैसे आम हो गया, गुरु हो गया, कई शब्द ऐसे हैं और इनका बहुवचन भी बनाते हैं, जो आपको आपकी अगली क्लास में बताया जाएगा। हम इन शब्दों में जन या वृंद या गण शब्द लगा के इनका बहुवचन बनाते हैं, लेकिन प्रायः आप इन्हें, अभी आपको ये जानना है कि एक वचन और बहुवचन में ये क्या रहते हैं, समान रहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे फल, फल से आप कोई उदाहरण बनाते हैं हम, जैसे मेरे पापा फल लाए हैं, या एक फल लाए हैं, मेरे पिताजी केले के फल लाए हैं, ठीक है, या कई फल लाए हैं। तो फलों को लाए हैं या इसका बहुवचन नहीं होता। इसका बहुवचन हम कैसे समझते हैं, जिस प्रकार अभी मैंने आपको बताया था, जैसे साधु आया है, ठीक है, साधु आया है और साधु आए हैं। तो इसका, इन शब्दों का हम एक वचन और बहुवचन कहाँ से कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ पर क्रिया के प्रयोग से लगाते हैं। साधु आया है अर्थात यहाँ पर जो ये साधु का रूप है वो एक वचन में है, और वहीं ये साधु आए हैं अर्थात बहुवचन में है। इसी तरह से बालक पढ़ता है और बालक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बालक शब्द से नहीं पता चलता है कि एक वचन है या बहुवचन, हमें इसकी क्रिया से पता चलता है, ठीक है। तो एक वचन व बहुवचन में समान रहने वाले कुछ शब्द हैं जो आपको याद करने, वो इस प्रकार है, फल, साधु, बालक, फूल, खिलाड़ी, छात्र, आम, ठीक है, अध्यापक, ये भी आपके दोनों वचनों में समान रहते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको चैप्टर 6 का वचन का रिवीजन कराया है, तो आज आपको भी इस चैप्टर का फिर से पुनः रिवीजन करना है। इसके जो भी अभ्यास कार्य हैं ये आपको पुनः करने हैं। पुनः करने का अर्थ है इन्हें आप रफ कॉपी में नोट करके इनका अभ्यास करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको बुकलेट में एक्सरसाइजेस दी गई हैं, परिभाषा दी गई है, वो परिभाषाएं याद करेंगे, ठीक है। तो हमने सीखा कि वचन क्या है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या बहुत एक से अधिक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। एक वचन वे शब्द होते हैं जिनसे हमें संख्या में एक होने का संख्या में एक होने का ज्ञान होता है। बहुवचन वे शब्द होते हैं जिनसे हमें संख्या में एक से अधिक होने का ज्ञान होता है। महापुरुषों तथा बड़ों के लिए हम सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं, और एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का वचन हम उनकी क्रिया या कारक से जानते हैं। निर्णय क्रिया तथा कारक से होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, चैप्टर रिवाइज करना है, ये आपका होमवर्क है। सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन कंप्लीट योर ऑल वर्क एंड ऑल्सो लर्न। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।